Good evening, Vichapati. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. So हम लोग पीरियोडिसिटी कर रहे थे उस दिन, क्लास बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ द पावर कट। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या है ये तो समझ में आ ही गया था, पीरियड क्या होता है और फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, इतनी बात तो क्लियर थी। Yes. सो पीरियोडिसिटी टेस्ट कैसे करते हैं दैट वी हैव टू सी, and then we will discuss the periodic properties of periodic function and how to find out the period basically. So in order to test the periodicity, we will make use of this definition only. F of x plus t is equal to fx. We'll consider f of x plus t is equal to fx where t is a finite positive constant, and apply the condition that it is true for all x belongs to domain. Then we will solve the equation, this equation for t, and we'll figure out whether we can get a value of t which is finite, positive and constant or not. If t comes out to be variable, if t is a function of x, then the function will remain oscillatory function, but it will not be a periodic function. If t is a constant and we get values of that constant, that constant will become period, and if we could find out the minimum value of t, that becomes a fundamental period. In certain cases we won't be able to find out minimum value of t, then we'll say that function is periodic without any fundamental period, right? So let's continue the process how you do it. For instance, if you are given that test the periodicity of this function cos of 3 pi x plus 4. So if this is fx, so what we will do, we'll try f of x plus t. F of x plus t is equal to fx. Means what? Means cosine of 3 pi x plus t plus 4 minus cosine of 3 pi x plus 4 is equal to 0. Cosine c minus cosine d implies what? Cosine c minus cosine d is, you apply the CD formula, 2 cos c plus d by 4. What is c plus d by 4? If you work it out, it comes out to be 3 pi x plus 4 gets doubled, right? साइन में आ जाता है 2 sin. साइन में Cos c minus cos d is 2 sin, definitely 2 sin. 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2. C plus d by 4 comes out to be, c plus d by 2 is 3 pi x plus 4, double by 2 करेंगे तो 3 pi x plus 4 and plus 3 pi t by 2 into sin c minus d by 4 or d minus c by 4. if you do माइनस ले लिया और c माइनस d by 4 किया तो आएगा c माइनस d करोगे तो 3 pi x plus 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 3 pi t by 2 is equal to 0. Now this means either if this becomes 0, even then the equation gets satisfied. If this becomes 0, even then equation gets satisfied. So one possibility is that this quantity is 0. If this quantity is 0 means what? Sine of something is 0. That means 3 pi t by 2 is equal to n pi. And from here pi gets cancelled with pi gets cancelled with pi, and you get the value of t as what? T comes out to be 2n by 3 for n belongs to integers. Now n integer, but we know that t has to be a positive constant. Definitely I am getting t as constant, but positive constant. Therefore I'll put n as natural number. So value of t comes out to be 2 by 3 or 4 by 3 or 2 or 8 by 3 and so on and so forth. Infinite number of values of t will be obtained. That means this function is periodic with 2 by 3 period, 4 by 3 period, 2 period, 8 by 3 period, and so on and so forth.
What is the least value of t possible? 2 by 3. 2 by So this 2 by 3 becomes fundamental period, or by default it is called period. So fundamental period or period of this function is 2 by 3, and it is a periodic function. What does this represent? If this becomes 0, you get a value of t as a function of x. That means this function is not necessarily repeating its value after 2 by 3, but it is also repeating value at some other points, non-multiple of 2 by 3, which keeps on varying, which is a function of x. But that repetition is not a periodic repetition, because its interval keeps on changing first, and second, the entire property might not be repeating. For example, if you look at sin x only, look at the graph of sin x. ये sin x का ग्राफ है मान लो. सो रेपिटेशन की बात करो, मान लो sin x की वैल्यू हाफ हो रही है, तो हाफ तो यहाँ हो रही है, पाई बाई 6 पर भी हाफ हो रही है, और फिर 5 पाई बाई 6 पर भी हाफ हो रही है ना. और फिर इसके बाद में अगर देखो तो अगला इंटरवल में अगेन यू विल गेट, यहां पर भी हाफ हो रही है, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6 पर, और 3 पाई माइनस पाई बाई 6 पर फिर से हाफ हो रही है. तो पीरियड क्या होगा? तो पीरियड ये पीरियड नहीं हो सकता. सिर्फ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रेपिटेशन हो तो रहा है, वैल्यू तो रिपीट हो रही है वाली, लेकिन वो रिपीट करने का सेंस अलग है. यहाँ पर इंक्रीजिंग मोड में रिपीट हो रही है, यहाँ पर डिक्रीजिंग मोड में रिपीट हो रही है. यहाँ पर फंक्शन का नेचर अलग है, यहाँ फंक्शन का नेचर अलग है. बट इस पॉइंट पर जाओ तो बिल्कुल ट्रू सेंस में रिपीट हो रही है. इस पॉइंट पर यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू भी रिपीट हो रही है, हियर एंड देन हियर, एंड उसका इंटायर ग्राफ रिपीट हो रहा है, उसका सारी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं. तो फंक्शन का वैल्यू रिपीट होना इज नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन. its entire nature shall repeat, our entire curve has to repeat, regain its nature. So इसलिए ये वाला इंटरवल जो है एक पीरियोडिक लेंथ है, पहली बात. दूसरी बात, एक पीरियड के लेंथ को अगर आप कट करो तो उस लेंथ से आप ग्राफ को बना सकते हैं, कंप्लीटली फॉर्म कर सकते हैं. मतलब ये एक पीरियड अगर आया साइन एक्स का 2 पाई, तो इसी एक पीरियोडिक लेंथ से कट एंड पेस्ट करके पूरा ग्राफ बनाया जा सकता है. And this is the minimum length you will use it. If you use the half length, then also you can do it, but then you have to reflect in x-axis and translate, and that way you have to create. But only without any reflection, without any transformation, only just cutting and pasting the graph, you want to get the entire graph, then you need a one periodic length complete. Now work out the next one. Tan root x is periodic or not? Tan of root x is periodic or not? If you test it, what do you get? Tan of root of x plus t is tan of root x. And solving this equation, we will get root of x plus t is equal to x plus n pi. Root x plus n pi. And this, after simplification, if you square it out, you will get x plus t is equal to x plus n square pi square plus 2 root of x into n pi. So you'll get x gets cancelled, and t comes out to be a function of x, n pi times n pi plus 2 root x. Now n is an integer, n belongs to integer. So for no integer value of n, t can be constant except 0. Do you agree or not? Yes, sir. Yes, sir. And if I put n as 0, then this t becomes 0. And that t 0 is not allowed, you know it well.
because if period is 0, then if you consider, if you allow period 0, then every function will be called as periodic function, because by replacing x by x plus 0, every function repeats its value. So t0 is not allowed. T positive, no positive value of t, no positive constant t is possible. What does that mean? This means this function is oscillatory. This is repeating its value, but the repetition keeps on varying. The repetition keeps on varying. For instance, if root x varies 0 to pi, that means x varies 0 to pi square. You get one cycle of t, 0 to pi square. If it is pi square and this is 0, so you will get the value of t like this. Tan will get like this. And when you take root x as pi to 2 pi, that means x varies pi square to 4 pi square. The interval length is now 3 pi square. Earlier, first interval length was pi square. So first cycle got completed in pi square interval. Pi square is approximately 10 point something, right? So in 10 point or 9 point something, approximately in 10 units, it got one cycle, one complete range of tan. And then the next is thrice of that. And as you keep on going on right hand side, you'll get that the interval of repetition goes on stretching. So it's an oscillation, but it is not a periodic oscillation. So periodic oscillation is a special type of oscillation in which the interval remains constant. So it is not a periodic function. A non-periodic function are also known as aperiodic function. aperiodic, aperiodic or non-periodic. So testing is done like this. I would say that don't waste much of your time on testing. Yes. How can you just find the period of these two functions and decide whether it is a periodic or not? Just get me the answer. E raised to the power tangent of 3x plus pi by 4. If you get this as a function fx, then f of x plus t is equal to fx, means e raised to the power tan of 3x plus t plus pi by 4 is equal to e raised to the power tan of 3x plus pi by 4. Now exponential function is an injective function, you know. And what is the property of injective function? Injective function has a property that fx1 is equal to fx2. So if output equal, if output equal, then x1 is equal to x2, input equal. That means this means I can remove e and say that tan of this is equal. So I am just putting it like this. That implies in next line you will put like this. Now what do you say? Tan A equal to tan B. Again the same story. Either you put tan A minus tan B 0, तो ये भी कर सकते हैं हम कि tan A minus tan B 0 कर दें. फिर वही sin upon cos है, तो cos A sin B minus sin A cos B, तो sin A minus B 0, और वहां से n पाई आ जाएगा. तो वहां से दिखा भी सकते हैं या डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस n पाई. So your answer is 3x plus pi by 4 plus 3t by 4 is equal to n pi plus 3x plus pi by 4. Is that clear? Is that okay? यहाँ से क्या है फाइनली? यहाँ से है 3t over 4 is equal to n pi. यहाँ से आ गया t is equal to 4n pi by 3, and where n can be any natural number because I have to choose t as positive valued. So this is value of t.
So how many values of t are possible? 4 pi by 3, 8 pi by 3, and 4 pi, and so on and so forth. Infinite value of t is possible. Which is the least value? 4 pi by 3, and therefore period is 4 pi by 3. It is periodic with the period 4 pi by 3. And by going through similar procedure, you can show that cosine x square is non-periodic. Cosine of x square, when you take cosine x square as a function, and as we had done in case of tan root x. So we'll find that here also t comes out to be a variable quantity as a function of x. So it is not periodic function. Now we'll go and take up the properties, because our concern is not to test the periodicity. Usually testing of periodicity is asked in subjective exam, and you are going to face objective exam only. So we will focus more on finding out the period, right? So let's go to the properties of periodic function and find the period. How to get the period of function? By observing directly without much of calculations. The first property of periodic function is, every property I'll mention and you will prove it, right? So 4, 5, 6 properties, and then you can attempt any question. If a function fx defined such that f of x plus t is minus fx, where t is a positive constant, then f is periodic with the period twice of t. Means अगर f of x plus t fx आ जाता है तब तो पीरियोडिक ही हो गया, उसका पीरियड t हो जाएगा. लेकिन मान लो कहीं पर भाई हम टेस्ट करते समय हम यही करेंगे ना, हम f of x plus t निकालने की कोशिश करेंगे और fx आने के बजाय वो नेगेटिव ऑफ fx आ गया, तब हम क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे कि उसका पीरियड t नहीं है 2t है. कैसे इस बात को जस्टिफाई करेंगे? तो अगर कहीं दिया हुआ है f of x plus t माइनस fx, इसका मतलब हो गया कि ये बात हर x के लिए ट्रू है? x की x plus t डाल देंगे. तो आप x की जगह एक बार x plus t फिर से कंपोज कर दो, x is replaced by x plus t, तो आ जाएगा f of x plus 2t, और इधर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ f of x plus t. But f of x plus t from first equation, if you replace here, it becomes minus of minus fx. तो ये हो गया तुम्हारा fx. तो f of x plus t fx होने का मतलब आप समझ ही क्या होंगे कि इसका पीरियड क्या है? 2t इस पीरियड. ऐसे कुछ एग्जांपल बता सकते हैं? कोई फंक्शन जो नोन फंक्शन है इस बात को फॉलो करता है? Sin वाले. Sin. Cos of x plus pi is minus cos x. Sin of x plus pi is minus sin x. तो यहां से आप देखते हो दोनों का पीरियड, cos का पीरियड भी क्या होता है? 2 पाई, और tan sin का पीरियड भी क्या हो जाता है? 2 पाई. नेक्स्ट, इसको हम कन्वर्सली नहीं अप्लाई करेंगे. मतलब f of x plus t नेगेटिव fx है तो 2t पीरियड होगा, लेकिन अगर 2t पीरियड है तो f of x plus t माइनस fx होगा, ये जरूरी नहीं. समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? Yes. तो साइन कॉस सीकेंट कोसेकेंट इसके ट्रिवियल एग्जांपल है. दूसरा केस पे चलते हैं. If a function fx defines as that f of x plus t becomes 1 over fx or negative 1 over fx, x की जगह x plus t पुट किया और fx आने के बजाय 1 by fx आ गया या नेगेटिव ऑफ 1 by fx आ गया, तब क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे अभी भी पीरियड जो है इसका माइनस 2t ही हो जाएगा. And you can prove it by similar way as you did it in the last case. The period will be 2t. Proof दिख रहा है? x को x plus t पुट करो तो f of x plus 2t become 1 upon f of x plus t, और f of x plus t 1 by fx है तो 1 by fx रिप्लेस करो तो 1 upon 1 by fx, तो fx ही आ जाएगा. ऐसे दूसरे केस में भी आ जाएगा. तो ये भी प्रूफ बहुत सिंपल सा है, तो कन्वर्स यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं है.
एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस माइनस वन बाई एफ एक्स, एक्स को एक्स प्लस टी किया तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी प्लस माइनस वन अपॉन एफ एक्स प्लस टी हुआ। अब प्लस के केस में वन बाई एफ एक्स डाल दो, माइनस के केस में माइनस वन बाई एफ एक्स डाल दो, तो रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल वापस वही फंक्शन आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी आ जाएगा, यहाँ पर भी एफ एक्स आ जाएगा, तो टू टी इसका पीरियड हो गया। जैसे tan x, tan पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होता है जी, वन बाई टेन माइनस वन बाई टेन। कॉट पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होता है जी, माइनस वन बाई कॉट। तो ये दोनों में पाई बाई टू का डबल, मतलब पाई पीरियड है। tan का पीरियड क्या है, पाई, पाई बाई टू का डबल, और कॉट का भी पीरियड क्या है, पाई। तो ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रही है। इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड टी देन फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड। पहला, अगर फंक्शन एफ एक्स टी पीरियड से पीरियोडिक है और उस फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे तो पीरियोडिसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट ऐड करने से ग्राफ ट्रांसलेट अप एंड डाउन, और पीरियोडिसिटी इज अ हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी, राइट? After how much distance you travel horizontally and you get the graph repeated. If a graph is repetitive and you are taking the translating the graph vertically, period will not change, periodicity will remain there. So it will be a periodic function with same fundamental period, with same period. Sin x is periodic, then 2 plus sin x, 3 plus sin x plus pi, half plus sin x is all periodic functions. Kfx is periodic with period t. If you multiply, means if you add or subtract some constant quantity to the function, the period doesn't change. If you multiply a function by some constant, the period doesn't change, provided that constant is non-zero and real constant. So if k is constant and k is not equal to 0, k is finite, then period will remain same. Sin x has some period, so thrice of sin x also has same period. Half sin x also has same period. F of x plus k, if you change the input x by some x plus k, means if you add some constant in the argument of function, input of function, में shift होती है, okay. the period will not change, because you know in geometry replacing x by x plus k means origin will shift, the frame will shift horizontally, either leftward if k is positive and rightward if k is negative. So shifting horizontally and vertically, shift hai, it is not stretching and compression. If the curve is compressed, period will change. If it is stretched, period will change. But if it only translates, the period will not change. Repetition, interval of repetition will remain same. Hope you are getting it. Yes. Okay. So these are the operation you can do without changing the period, means period remains invariant. टेस्ट किया सकता है gx को f of x plus k डाल करके, अगर आप देखोगे तो g of x plus t is f of x plus t plus k, and f of x plus t plus k, if I put f of x plus k as y, so it is f of y plus t, and f of y plus t is fy, and y is x, y is nothing but x plus k, so it is f of x plus k. So gx plus t remains gx, and therefore period remains same. Fkx, if you replace x by kx, means if you multiply the input or argument by k, period will change, and new period becomes t by mod k, or rather you say t by k if k is positive. मतलब जब आप x को kx करते तो क्या होता है, क्या होता है समझो। x को kx किया, मतलब मान लो x को 2x किया, f2x किया. Let fx has domain of f was a to b. ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं. What will be the domain of f2x? अब तो आप कंपोजिशन पढ़ चुके हो, तो कंपोजिशन क्या बोलता है, डोमेन ऑफ f2. हाँ, तो इसको डिफाइन होने के लिए 2x की वैल्यू a से b होनी चाहिए. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2 से b/2 होनी चाहिए. तो इंटरवल क्या हुआ भाई, डोमेन क्या हो गया, a/2 टू b/2 इंटरवल, मतलब जो ए बी इंटरवल है ना, अब a/2 टू b/2 में ही वो सारी वैल्यू आ जाएगी जो ए बी में आ रही थी.
अब यहाँ इंटरवल की लेंथ क्या हो गई, ये लेंथ ऑफ इंटरवल क्या था, लेंथ ऑफ डोमेन क्या था, ये था तुम्हारा b माइनस ए मॉड, और यहाँ लेंथ ऑफ डोमेन क्या हो गया, ये हो गया b माइनस ए मॉड बाई 2। समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो? समझने वाली बात ये है कि एक कोई भी नोन ग्राफ लेके देखो, जैसे अगर मैं साइन एक्स की बात करूं तो साइन एक्स का ग्राफ पहले बना लेते हैं और साइन 2x का ग्राफ बना लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ तुम्हारा, साइन एक्स का ग्राफ कैसे कुछ ऐसा है, मान लो ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। साइन मतलब एक पीरियड इसका ये है, ये एक इंटरवल पूरा एक साइकिल कंप्लीट होने का इंटरवल 0 से 2 पाई है। अब साइन 2x की बात करें तो 2x, साइन 2x के लिए यही सेम इंटरवल साइन 2x के लिए कब मिलेगा, जब x इस वाले फंक्शन में, ये तो साइन x था ना, साइन 2x लिखो जरा साइन x के बजाय। साइन 2x में वैल्यू जरा देखो, x की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 ही आएगा, x की वैल्यू पाई बाई 2 डालोगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2। इट इज न्यू फंक्शन gx, g पाई बाई 2 क्या आएगा, 0 या 0 आएगा, मतलब ये पाई बाई 2 पर ही 0 हो रहा है ना, जब ये 1 हो रहा है ये 0 हो गया। और पाई बाई 4 डालोगे तो क्या आएगा, पाई बाई 4 1 आएगा। 1 आएगा, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, ऐसे यहाँ से 1 हो गया और 1 के बाद ये 0 हो गया, और फिर 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4 पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इट विल गो लाइक दिस ऐसे, और फिर यहाँ 0 आ जाएगा। और समझ रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर 1 हो जाएगा, तो इट विल टेक द वैल्यू दिस वे ऐसे, एंड फिर ये 1 होकर के फिर ऐसे। मतलब क्या हुआ कि जितनी देर ये क्या हो गया, कॉम्प्रेस हो गया ग्राफ, ट्वाइस कॉम्प्रेस्ड हो गया, क्योंकि इंटरवल भी तो हाफ हो जा रहा है ना, जब लेंथ ऑफ इंटरवल जो था वो आधा हो गया तो कॉम्प्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ग्राफ इज ट्वाइस कंप्रेस्ड, ग्राफ इज ट्वाइस कंप्रेस्ड। f2x कैसे मिलेगा, कंप्रेसिंग ग्राफ fx 2 टाइम्स हॉरिजॉन्टली। और कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ भाई, कंप्रेशन का मतलब हुआ कि पीरियड अगर पहला एक इंटरवल का रेपिटेशन अगर t था तो अब हाफ हो गया, t/2 हो गया। अगर थ्राइस कंप्रेस कर दोगे तो t/3 हो जाएगा, 4 टाइम्स कंप्रेस कर दोगे तो t/4 हो जाएगा। तो कंप्रेस करने पे पीरियड कम होगा, छोटा होगा, और स्ट्रेच करने पे पीरियड बड़ा हो जाएगा। जैसे कि डबल स्ट्रेच कर दिया, वो कैसे होता है, fx/2, अगर x की जगह x/2 कर दो तो ये ट्वाइस स्ट्रेच्ड हो जाएगा। स्ट्रेचिंग होगा मतलब जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे x को 1/2, 1/3, 1/4 तो स्ट्रेचिंग होगा, और जब इंटीजर 2, 3, 4 से करोगे तो कंप्रेशन होगा, और दोनों ही केस में पीरियड चेंज होगा। तो अगर पीरियड हाफ डबल होना है ना, इस केस में पीरियड डबल हो जाएगा, तो t/हाफ करो तो 2t हो गया ना, और यहाँ पर पीरियड आधा होना है तो t/2 करोगे तो t/2 आ जाएगा ना। तो यही k से डिवाइड करना है पीरियड को। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, f(k(x) का Yes. पीरियड t/k हो जाएगा वेयर k इज पॉजिटिव। ये बात क्लियर समझ में आ रही है ना, और उसकी वजह समझ में आ रहा है क्यों होगा, वजह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। Yes. ठीक है, तो पीरियोडिसिटी का ये 4 प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल बात है ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, एक दो बात और समझ में आनी चाहिए आपको। साइन एक्स जैसे फंक्शन है, कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें जो एक पीरियोडिक इंटरवल है वो एग्जैक्टली 2 सिमेट्रिक हाफ में डिवाइडेड होता है, वैल्यूज सेम होती हैं, सिर्फ साइन अपोजिट होता है। जैसे साइन की वैल्यू यहाँ पर जो आ रही है और जो वही यहाँ पर आ रही पॉजिटिव, और यहाँ पर उतना ही आगे जाने पर वही सेम वैल्यू नेगेटिव आ रही, ठीक है। तो ये फंक्शन के अंदर में इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है, ये वाले पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है। तो ऐसे केस में जब आप मॉड लेते हैं तो क्या होता है, मॉड लेंगे तो ये पॉजिटिव वाला ग्राफ तो वही रहेगा, लेकिन नेगेटिव वाला ग्राफ जस्ट इसी का मिरर इमेज है, तो ऊपर जाकर के एकदम कॉन्ग्रुएंट कर्व बन जाता है। इसका मतलब है कि पीरियड पहले तो 2 पाई था, अब क्या हो जाएगा,
अब पाई ही रह जाएगा, क्योंकि यहीं से रेपिटेशन फिर से शुरू हो गया। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ये जो पोर्शन है इधर वाला, ये वाला पोर्शन, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, ये दोनों क्या होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, या बोलो कि इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री होनी चाहिए, ये वाले पॉइंट के अबाउट। एनी लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट मस्ट इंटरसेक्ट द ग्राफ सिमेट्रिकली बोथ वेज, सिमेट्री अबाउट द पॉइंट। तो यहाँ पर पाई कॉमा 0 के अबाउट सिमेट्री थी, इसलिए ऐसा हो गया। तो कॉस में हो जाएगा, साइन में हो जाएगा, हर जगह नहीं होगा, लेकिन जहां पर इस तरह की सिचुएशन होगी तो मॉड लेने पे पीरियड से आधा हो जाएगा, हाफ। तो एफ एक्स हैज पीरियड टी, देन मॉड एफ एक्स का पीरियड भी टी तो होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और t/2 भी हो सकता है, या t/3 भी हो सकता है, t/4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ग्राफ उसका अंदर में कैसा है, ठीक है। तो उससे उसका जो सब मल्टीपल्स है वो भी पीरियड, t का सब मल्टीपल भी पीरियड हो सकता है, आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। नाउ गोइंग अहेड, इसको भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट, नाउ अब सपोज वी हैव टू फंक्शन f(x) and g(x), and you know in algebra we have done that functions को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, तो उसमें पीरियड कैसे बिहेव करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर दो फंक्शन है f एंड g और f पीरियोडिक है एंड g पीरियोडिक है, हो सकता है f ना पीरियोडिक हो बट सपोज g पीरियोडिक है, तो अगर f और g दो फंक्शन है जिसमें g पीरियोडिक है और उस पीरियोडिक के ऊपर में एक फंक्शन f कंपोज कर रहे हैं, तो f ऑफ gx भी पीरियोडिक होगा विद पीरियड t। यहां पर f के बारे में हम पीरियोडिसिटी है या नहीं है नहीं बोल रहे, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, नहीं भी है तो भी gx अगर अपनी वैल्यू रिपीट करेगा x t इंटरवल के बाद, अगर gx प्लस t की वैल्यू फिर से gx आएगी तो f को वही इनपुट फिर से मिलेगा, तो f को gx इनपुट दोबारा मिलेगा तो f gx की वैल्यू भी रिपीट हो जाएगी। तो सीधी सी बात है कि जो इनर कंपोनेंट का पीरियड है कंपोजिट फंक्शन का पीरियड भी वो होगा। फंडामेंटल पीरियड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, फंडामेंटल पीरियड डिफरेंट भी हो सकता है बट पीरियड वही होगा। मैं दो एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल मैंने दिया, साइन एक्स पीरियोडिक है कि नहीं, जल्दी बोलो। साइन पाई एक्स बाई 3 पीरियोडिक है कि नहीं, ये बोलो। है। पीरियड क्या है इसका, इसका पीरियड क्या है, जल्दी बोलो। तो 2 पाई साइन एक्स का पीरियड होता है और k कांस्टेंट है पाई/3, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 6। साइन पाई एक्स बाई 3 का पीरियड है 6, ओके। अब मैंने बोला e रेज टू द पावर साइन ऑफ पाई एक्स बाई 3 का पीरियड क्या होगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने कंपोज किया है ना, तो एफ जी एक्स की बात कर रहा हूं मैं। एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा है e की पावर x। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं f ऑफ g ऑफ x प्लस 6 करूंगा, क्या मिलेगा मुझे, e टू द पावर साइन ऑफ पाई/3 टाइम्स x प्लस 6 करोगे आप, तो आएगा e टू द पावर साइन ऑफ पाई/3 इंटू 6 का होता है 2 पाई प्लस पाई x/3 आएगा, और साइन को 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही आता है, तो e की पावर साइन ऑफ पाई x/3 ही आ जाएगा, मतलब वापस वही फंक्शन आ गया, एफ जी एक्स आ गया। तो मतलब है कि पीरियोडिक है और पीरियड क्या है 6 है। एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो मोनोटोनिक फंक्शन है, उसको वो तो वैसे बिहेव करेगा जैसे साइन बिहेव कर रहा है, साइन इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, साइन डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा, जब साइन मैक्स लेगा तो ये भी मैक्स लेगा, जब साइन मिन लेगा तो साइन। मोनोटोनिक फंक्शन कंपोज करने पर ग्राफ में कुछ खास चेंज नहीं आता, वो जस्ट उसी को एम्पलीफाई करता है बस, और कुछ नहीं। वैल्यूज को कम ज्यादा करेगा लेकिन मैक्सिमा मिनिमा प्रॉपर्टी सब वही रहेंगे, रिपीट होंगी। तो पीरियोडिसिटी भी सेम रहेगी, आपने देखा पीरियड सेम है, 6 पीरियड है। बट अब एक दूसरा केस लेते हैं इसी एग्जांपल पर, अगर मैं एफ एक्स को ले लूं cos x या
मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, अब कॉस ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स बाई 3 के साथ क्या होगा आप सोचो, कॉस ऑफ मॉड ऑफ साइन पाई एक्स बाई 3, क्या आपको लगता है पीरियड वही रहेगा? फंडामेंटल चेंज। फंडामेंटल पीरियड चेंज हो जाएगा, बाकी पीरियड तो रहेगा। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे 6 पीरियड नहीं होगा, 6 पीरियड तो रहेगा, लेकिन 6 से छोटा पीरियड भी हो सकता है। रूट स्क्वायर का तो 3 हो जाएगा। हाँ जी, तो ये सबका देखो क्या है कि जैसे आप अब यहाँ 3 पीरियड है, पीरियड इज 3। कैसे? अगर मैं यहां पर x+3 करता हूं, x को x+3 करता हूं तो साइन पाई प्लस पाई एक्स बाई 3 आएगा। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आता है, वो माइनस कॉस एक इवन फंक्शन है, वो माइनस को खा जाएगा, माइनस को एब्जॉर्ब कर देगा। तो 3 पीरियड से ही पीरियोडिक रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जितनी पॉजिटिव वैल्यू साइन की थी, जब साइन की कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी तो कॉस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन की वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है, कॉस तो सेम आउटपुट जनरेट करेगा। इस वजह से पीरियड हाफ हो जाएगा, मतलब 6 के बजाय 3 हो जाएगा। तो इस केस में हमें अगर कोई बोले पीरियड क्या है, तो आप बोलेंगे पीरियड 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, सब पीरियड है। लेकिन फंडामेंटल पीरियड सबसे छोटा है, मेरे को क्या मिलेगा 3, तो हम बोलेंगे 3 इज द फंडामेंटल पीरियड। सेम विल हैपन हियर, सेम विल हैपन हियर, सेम विल हैपन हियर। मतलब एफ जी एक्स पीरियोडिक होगा विद पीरियड टी, इसमें कोई फ्लॉ है? इस स्टेटमेंट में कोई फ्लॉ नहीं। बट टी will remain the fundamental period or not, this is a question has to be investigated. You cannot claim that t is the fundamental period. T is a period, that's for sure. So composition की बात आ गई कि fgx is periodic with period t provided there, अब ये this is the important line which you have to write, provided there does not exist a lambda which is belonging to 0 to t, a constant lambda belonging to 0 to t, such that f of g of x plus lambda is equal to fgx। अगर मेरे को ऐसा कोई लैम्डा मिल गया कांस्टेंट जो t से भी छोटा है, बट उसके लिए पीरियोडिसिटी स्टैब्लिश हो गई, तो हम t के बजाय लैम्डा को पीरियड बोलेंगे टेक्निकली स्पीकिंग। फाइंड द पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस क्विक। ये सारे केसेस में फटाफट पीरियड निकाल के देखो, जल्दी से निकाल के देखो, मतलब निकाल के देखो, फाइंड करके देखो यूजिंग द प्रॉपर्टीज, और कुछ नहीं। हमें तो पाई आ जाएगा। तो पहले केस में इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखो। इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ कांस्टेंट ऐड करने पर पीरियड नहीं चेंज होता है ना, तो अगर यहां से मैं +4 कर दूं फंक्शन में या हटा दूं 4 तो पीरियड नहीं चेंज होगा। यही सब देखते जाओ। फिर अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर पीरियड नहीं चेंज होता, तो अगर मैं 3 को हटा दूं तो भी पीरियड नहीं चेंज होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? फिर जो sin 2x का पीरियड होगा वही sin 2x प्लस π/4 होगा, तो इनपुट में कुछ ऐड करने से भी पीरियड नहीं चेंज होता, ये बात भी सही है। तो अब कुल मिला जुला के हम sin 2x पर आ गए कि जो sin 2x का पीरियड है वही उस फंक्शन का पीरियड है। अब sin 2x का पीरियड क्या है, तो sin x का पीरियड क्या है, sin x से बना है। sin x हमारा क्या था, sin x पीरियोडिक था, पीरियड क्या था, पीरियड इसका था 2π। अब x की जगह 2x किया तो 2π/2 हो जाएगा, है ना। x को 2x किया तो 2π/2 हो गया, मतलब पाई पीरियड हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ आओ बी पार्ट क्या बोल रहा है, ए तो हो गया। बी पार्ट में e⁻ sin x एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंपोज करने पे पीरियड चेंज नहीं होता, तो इसका पीरियड इज सेम एज a sin x प्लस b का पीरियड, और इसका पीरियड मतलब सेम एज a sin x का पीरियड, और उसका पीरियड मतलब सेम एज sin x का पीरियड, और sin x का पीरियड क्या है 2π। तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, दोनों पार्ट का पीरियड आ गया। इसका पीरियड हमारा आया था पाई और इसका पीरियड आ गया 2π। व्हाट अबाउट द थर्ड केस? हाँ, 3 हटा दो, लॉग लेने से पीरियड नहीं चेंज होगा, tan ऑपरेट करने पर पीरियड नहीं चेंज होगा, सिर्फ यहाँ सॉरी tan की बात करो, सॉरी tan πx प्लस π/4। व्हाट इज द पीरियड ऑफ tan ऑफ πx? क्योंकि πx में π/4 ऐड करके पीरियड नहीं चेंज होगा। हाँ जी, इट इज सेम एज t π/π।
वन पीरियोडिक है, तो ये वाला पाई है, ये 2 पाई है, 1 पीरियड से पीरियोडिक। व्हाट अबाउट डी? इसका पीरियड वही होगा जो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 3 का पीरियड है, और उसका पीरियड वही होगा जो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल x का पीरियड है, उसका पीरियड वही होगा जो फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड है ना? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? तो इसका पीरियड क्या है? इसका पीरियड 1 है, तो ये भी 1 पीरियड से पीरियोडिक है। हाँ, ये आंसर, ये वाला आंसर गड़बड़ है। इसमें अगर हम ऐसा बोलते कि e रेज टू द पावर ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट 3x प्लस 3 ऐसा कुछ देता, अब पीरियड क्या हो जाएगा? अगर d पार्ट 1/3, अब 1/3। तो इतनी जितनी बातें अभी तक डिस्कस हुई उतने उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात? यस सर। Yes, sir. अगली बात पे चलते हैं जी। अगर बोल रहे हैं कि fx और gx दो फंक्शन है और दोनों पीरियोडिक है, ठीक है, और उनके रिस्पेक्टिव पीरियड है t1 और t2, तो ऐसे दो फंक्शन को अगर आप ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो दो पीरियोडिक फंक्शन का समेशन पीरियोडिक होगा इन जनरल। Generally it is a periodic function. At times it may not be periodic as well, but those are very specific cases, right? fx minus gx will remain periodic function, fx into gx will remain periodic function, fx by gx will remain periodic function. periodic तो रहेगा generally, but period change होगा। पीरियड जरूरी नहीं कि आपका सेम रहेगा, t1 सेम रहने का तो कोई पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि एक का t1 एक का t2 है, तो डेफिनेटली यू हैव टू फिगर आउट कि पीरियड होगा क्या। तो पीरियड वो इंटरवल होगा जिस इंटरवल से दोनों रिपीट करें। तो f कब रिपीट करेगा अपनी वैल्यू? t1 के मल्टीपल n t1 पर, n टाइम्स t1 पर f रिपीट करेगा। fx की वैल्यूज रिपीट होंगी n टाइम्स t1 पर, मतलब t1 पर, 2t1 पर, 3t1 पर, एंड सो ऑन सो फोर्थ n टाइम्स t1 पर। ये f का रेपिटेशन है। और gx का रेपिटेशन क्या है? t2 पर, 2 ऑफ t2 पर, थ्राइस ऑफ t2 पर, एंड सो ऑन m टाइम्स t2 पर। मैं चाहता हूं, मतलब आप चाहते हैं कि दोनों जब एक ये चाहते हैं, मतलब क्या कि आपको ये तो दिख रहा है कि जो इंटरवल दोनों में कॉमन आ जाए, कोई ऐसा कॉमन इंटरवल जिससे दोनों का साइकिल कंप्लीट हो जाए। f की साइकिल t1 2t1 3t1 पे कंप्लीट हो रही है, इसकी साइकिल t2 t2 to 3t2 पे हो रही है। अगर दोनों में कोई कॉमन मल्टीपल है ना, दैट इज LCM ऑफ I wish that n times t1 becomes m times t2. That means the period t has to be common multiple of t1 t2. मानते हो कि नहीं मानते हो? यस यस। Is common multiple of t1 and t2, and that is t minimum shall be the least common multiple of t1 and t2. तो ये एक तो जेनरिक सा कंक्लूजन है। इसमें बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए अगर हम सोचें तो हम बोलेंगे कि भाई अगर t1 के मल्टीपल पर पहला फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, t2 के मल्टीपल पर दूसरा रिपीट कर रहा है, और कोइंसिडेंटली अगर दोनों एक साथ रिपीट कर गए तो पूरा का पूरा फंक्शन f प्लस जी या f माइनस जी या f इंटू जी या f बाई जी रिपीट कर जाएगा। तो हमारा जो डिजायर्ड फंक्शन है, ये जो 4 फॉर्म में है, ये चारों फॉर्म में किसी भी फॉर्म में फंक्शन हो तो LCM ऑफ t1 t2 पीरियड उसका हो सकता है। बट ये जरूरी नहीं कि ये फंडामेंटल पीरियड हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है f बाई जी की वैल्यू रिपीट होने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि f और g दोनों अपनी वैल्यू रिपीट करें। फॉर इंस्टेंस अगर f की वैल्यू डबल हो गई और g की भी डबल हो गई तो, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? f बाई जी है, fx बाई gx है, यही fx बाई gx तो ट्वाइस fx बाई ट्वाइस gx भी हो सकता है।
अगर अगर एफ एक्स ने किसी इंटरवल पर, मतलब किसी इंटरवल किसी टी पर, अगर एक्स प्लस टी पर एफ एक्स की वैल्यू डबल एफ एक्स हो गई, रिपीट नहीं हुआ, वो उसका उसका वैल्यू अपना डबल हो गया, और उसी इंटरवल उसी पॉइंट पर जी एक्स ने भी अपनी वैल्यू डबल कर दी, तो ऐसे केस में ना तो एफ अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, ना तो जी अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, लेकिन रेशियो तो वापस वही आ गया, या एफ हाफ हो गया, जी भी हाफ हो गया। या ऐसे बोलो, यहां आ जाओ, एफ एक्स प्लस जी एक्स की बात कर लेते हैं। अगर एफ अपनी वैल्यू रिपीट कर दे और जी रिपीट कर दे तब तो रिपीटिशन होगा ही होगा, लेकिन मान लो कि एक टी मिला मुझे सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू आ गई एफ एक्स माइनस के, और जी ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू आ गई जी एक्स प्लस के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो क्या एफ एक्स अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है? नहीं जी, वो तो अभी के यूनिट से शॉर्ट है उसकी वैल्यू, और जी एक्स की वैल्यू के यूनिट से प्लस हो गई, और जब दोनों को सम किया तो उसकी शॉर्टेज और इसका सरप्लस दोनों कंपनसेट कर गए और वापस रिपीटिशन हो गया। तो बातें कुछ डिफरेंट भी हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं है कि एलसीएम ऑफ T1 T2 ही पीरियड हो, दूसरे उससे छोटे, भाई एलसीएम ऑफ T1 T2 पीरियड होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि जब दोनों अपनी वैल्यू रिपीट करेंगे तो फंक्शन रिपीट होना ही होना है, लेकिन उसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मतलब एलसीएम T1 T2 से छोटा कोई लैम्डा अगर मिल गया या टी मिल गया, जिसके लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स माइनस के हो जाए, जी ऑफ एक्स प्लस टी जी एक्स प्लस के हो जाए और रिपीट कर जाए वैल्यू, तो उस पॉसिबिलिटी को हम डिनाई थोड़ी कर सकते हैं। और जब तक ऐसी पॉसिबिलिटी को हम एक्सप्लोर नहीं कर लेते तब तक हम ये तो नहीं क्लेम कर सकते हैं कि मिनिमम पीरियड एलसीएम ऑफ T1 T2 ही होगा, बट यस पीरियड तो एलसीएम ऑफ T1 T2 होगा, दिस इज फॉर श्योर। एंड आई टेल यू वन थिंग, मोस्टली वी विल रिक्वायर पीरियड, we will not require LCM for application purposes। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 0 से 1000 इंटीग्रेट करना है, अगर हमें पता है कि पीरियड उस फंक्शन का 2 है, तो हम 0 से 2 इंटीग्रेट करके उसी को जो हम क्या बोलते हैं 500 टाइम्स कर देंगे, तो 0 से 1000 का इंटीग्रल मिल जाएगा। या कोई और प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें पता है कि 0 से 2 में इतने रूट है, तो 0 से 1000 में कितने रूट होंगे, तो पीरियोडिसिटी के एप्लीकेशन में पीरियड की जरूरत होती, फंडामेंटल पीरियड नहीं भी पता है तो चलेगा। तो फंडामेंटल पीरियड जस्ट टिपिकली एक इंफॉर्मेशन है, जब उसी पर बेस करके कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, अदरवाइज फॉर एप्लीकेशन पर्पसेस ओनली पीरियड इज रिक्वायर्ड। सो वी आर कंसर्न्ड अबाउट पीरियड मोर देन द फंडामेंटल पीरियड। नाउ प्रूफ समझ में आ गया कि अगर नॉर्मली प्रूफ करना है, I'll say fx is fx plus t, then f of x plus t is f of x plus t plus g of x plus t, and there is possibility when f of x plus t become fx and g of x plus t become gx, especially if t becomes nt1 and mt2 as well. That means if t is a common multiple of T1 T2, then certainly the repetition is going to take place. So T minimum is LCM of T1 T2. This is what the argument we have placed earlier, but you know well that this argument is a necessary, sufficient argument, but not necessary. It is not necessary. It is sufficient, but not necessary. And that is why we claim that if there does not exist a lambda, which is a positive constant but smaller than LCM of T1 T2, such that f of x plus lambda is equal to fx, अगर ऐसा लैम्डा मेरे को नहीं मिलता है तब LCM T1 T2 पीरियड होगा, और अगर ऐसा कोई लैम्डा मिल गया तो LCM T1 T2 के बजाय हम लैम्डा को पीरियड बोलेंगे। फिर कुछ और पॉइंट है, कांस्टेंट फंक्शंस हमेशा पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे क्योंकि वो तो कंटिन्यूअस रिपीट कर रहे हैं, बट उनका फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा कोई भी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अब जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर देखो, साइन स्क्वायर का पीरियड क्या है, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, बोलो। साइन स्क्वायर का पीरियड पाई होता है ना, तो अगर एलसीएम रूल से जाओ तो इसका पीरियड पाई है और इसका पीरियड भी पाई है, तो एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई क्या होता है,
पाई होता है। तो पाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का पीरियड पाई है। अगर कोई बोलता है तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है, पाई है, क्यों नहीं है पाई। बट अगर पाई है तो मैं बोलूं पाई बाय 2 पीरियड है कि नहीं, वो भी तो ठीक है। पाई बाय 4 पीरियड है कि नहीं, वो भी तो ठीक है। हाफ पीरियड है कि नहीं, वो भी ठीक। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ही क्या है, ये फंक्शन ही 1 है, कांस्टेंट है। तो इसमें सबसे छोटा पीरियड क्या है, तो वो सबसे छोटी पॉजिटिव नंबर पीरियड क्या है, पीरियड इज टी मिनिमम इज इक्वल टू एच, वेयर एच इज पॉजिटिव एंड एच इज टेंडिंग टू 0. So can you figure out such h, the number which is immediately succeeding 0? So successor of 0 is not defined in real set, and that's why we say that it is a periodic function with no fundamental period. So constant function has no fundamental period. वो मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरवल आप डिफाइन कर सकते हैं। इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ऑब्वियस सी बात है कि जब ये रिपीटिंग फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, तो इन्वर्टिबल नहीं। इफ fx has a period p, then 1 by fx root fx also have period p. It's not new. पीछे जो प्रॉपर्टी बोली कि मोनोटोनिक फंक्शन कंपोज करोगे तो पीरियड चेंज नहीं होगा। किसी भी पीरियोडिक फंक्शन पर अगर मोनोटोनिक फंक्शन कंपोज करते हो तो पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा, रादर उसके सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सिमिलरली अकर करेंगी। मैक्सिमा, मिनिमा and root, everything will be similarly occurring. Root you cannot say because sin x is having root, but e to the power sin x has no root. So but the things, those functional property will repeat at same point, especially the monotonic properties will repeat. Question kariye. Find the period of the following functions. A, First to A का 2 पाई। ठीक है, कैसे कैसे पता किया? sin square या cos square का term fx is equal to negative cos x. Cos क्या थीटा minus sin क्या थीटा is cos 2 थीटा. Agreed? याद है कि भूल गए? अब नेगेटिव cos x है तो पीरियड इसका डेफिनेटली क्या हो गया, 2 पाई। अगला, वैसे अगर उस तरह से जाते हैं sin स्क्वायर x by 2 का पीरियड क्या होगा, sin x का पीरियड, sin x by 2 का पीरियड क्या होता है, 4 पाई। तो sin स्क्वायर x by 2 का क्या होगा, 2 पाई। तो 2 पाई, इसका पीरियड भी 2 पाई है, दूसरे वाले का पीरियड 2 पाई है, तो एलसीएम रूल से भी 2 पाई आता है। ऑल्दो एलसीएम रूल में इश्यूज हैं, एलसीएम रूल में कुछ इश्यूज हैं, वो आपको याद रहने चाहिए। क्या कि उससे छोटा पीरियड हो सकता है एलसीएम रूल में। एलसीएम रूल जो है फंडामेंटल पीरियड के लिए एब्सोल्यूट रूल नहीं है। एनीवे, व्हाट अबाउट द सेकंड वन? पाई मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स, पीरियड क्या है, पाई। wrong, pi by 2 is the period. तुमने पाई कैसे बताया, एलसीएम रूल से बताया? यस सर। तो हमेशा एलसीएम रूल में आपको थोड़ा सा काउंटर चेक रखना पड़ेगा। पाई बाय 2 पीरियड है कि नहीं बताओ? ये सो कोस साइन में बदल दिया, साइन कोस। तो पहले वाले ने दूसरे का रोल ले लिया, दूसरे वाले ने पहले का रोल ले लिया, तो एडिशन चेंज नहीं हुआ, तो पाई बाय 2 पीरियड है। तो पाई पीरियड आ गया था एलसीएम रूल से, fx पीरियड ऑफ fx इज पाई बाई एलसीएम रूल। बट जब एलसीएम रूल से कोई पीरियड आए तो उस पीरियड का जो सब मल्टीपल है, मतलब चेक फॉर हाफ पाई, पाई बाय 3, ये सब पे चेक मारना पड़ेगा आपको।
ठीक है, क्योंकि अगर π/2 पीरियड है तो पाई भी तो पीरियड आएगा, π/3 पीरियड है तो उसका ट्रिपल करके पाई भी तो पीरियड आएगा, तो उसके सब मल्टीपल्स को चेक करना पड़ेगा आपको। और वो चेक किया आपने, जैसे जैसे आपने f(x + π/2) लिखा तो आपको मिला sin of x + π/2 का मॉड प्लस cos of x + π/2 का मॉड, sin x + π/2 का मॉड प्लस cos x + π/2 का मॉड। तो क्या आया भाई, sin x + π/2 cos x होता, तो मॉड cos x आ गया। cos x + π/2 sin x नेगेटिव होता तो माइनस sin x का मॉड हुआ, बट मॉड है तो भाई वो भी मॉड cos प्लस मॉड sin हो गया, तो वापस फंक्शन वही आ गया, तो π/2 पीरियड आ गया रादर देन पाई। तो ये एक लर्निंग है, इसको आपको याद रखना है, मतलब इस बात को रियलाइज करना है कि ऐसा होगा, इसलिए अलर्ट रहना है एलसीएम रूल अप्लाई करते समय। सी में जब आप पीरियड एलसीएम रूल से क्या आएगा, एलसीएम से पीरियड एलसीएम Pi. ऑफ, हाँ एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई रिमेन्स पाई, तो दिस इज पीरियड। इफ यू चेक फॉर π/2 व्हाट विल हैपन, f of Minus हो जाएगा। Negative हो x जाएगा। plus π/2 will get you minus fx, और इसका यहां से भी वही आ जाएगा, वो वाला थ्योरम लगाओ कि अगर पहला थ्योरम तो π/2 का डबल 2π/2 इज पीरियड, तो यहां से भी वही निकल के आया कि भाई पीरियड हमारा पाई ही होना चाहिए, तो पाई कंफर्म हो गया। डी, पीरियड है, एलसीएम रूल से पहले वाले का पीरियड कितना है 4π, 4 पाई। दूसरे का कितना है 4π, तो एलसीएम क्या है 4π। Even if I write like this 1/√2 times, so it is sin of x by 2 plus π/4, and this its period is same as sin x by 2 plus π/4, and its period is same as sin x by 2, and its period is definitely 2π/2, that is 4π. So even that argument goes well. So LCM रूल से डायरेक्टली जाओ तो भी चल रहा है, बेसिक प्रॉपर्टी से भी रिड्यूस करके भी हो जाएगा। तो ये है कि LCM रूल आना चाहिए आपको, बट बेसिक रिडक्शन भी आना चाहिए कि जस्ट यू सिंप्लीफाई दैट एक्सप्रेशन एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स सम स्टैंडर्ड फंक्शन, एंड देयर फ्रॉम देयर यू स्टार्ट जजिंग द पीरियड यूजिंग द अदर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिसिटी। सो सिंपल है, इट्स नॉट अ बिग डील। चलो जी, अब फटाफट, अब सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई हैं कैसे कैसे है, तो क्वेश्चंस करिए फटाफट जल्दी से। अभी शुरू में ABCD आंसर आपका जो है बहुत ही क्विक होना चाहिए, शार्प रिप्लाई, फास्ट। A का 2 पाई। कैरी ऑन। बी, फटाफट वो 6 शार्प, pi. मतलब कि ये हटा सकते हैं ना, जो जो बातें मैंने बताई उसको वो ध्यान में रहनी चाहिए, रूल्स में ये हट सकता है ना ये। हाँ क्या बोल रहे थे आप? ये हट सकता है, यहाँ से 3 हटाया जा सकता है, ये हटा, इससे करने से पीरियड नहीं चेंज होता है। अब इसके बाद पहले का पीरियड क्या हुआ 6. 6, तो एलसीएम ऑफ पहले का पीरियड हो गया 2π/π/3, 2π/π/3, एंड दूसरे का तो 2π ही है, तो आया क्या बताओ, पहले का तो आ गया 6 और दूसरे का आ गया 2π, सो फाइनली क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। LCM of 6 and 2π does not exist. I hope you agree, because the Yes, sir. first function will repeat at 6, 12, 18, 24, which are integers, rationals. Second will repeat at irrational intervals, 2π, 4π, 6π, 8π. So no common multiple.
कोई दोनों में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, और जब कॉमन मल्टीपल नहीं है तो एलसीएम कहाँ से आएगा भाई? नो एलसीएम। नो एलसीएम मतलब ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि दो पीरियोडिक फंक्शन का समेशन या डिफरेंस एक पीरियोडिक फंक्शन हो। वो ऑसिलेटरी हो सकता है बट पीरियोडिक होना जरूरी नहीं है। और यूजुअली पीरियोडिक होगा। कब पीरियोडिसिटी नहीं होगी? जब वो दोनों फंक्शंस का जो पीरियड है वो एक रैशनल एक नॉन कॉमेंसुरेट इरेशनल्स के फॉर्म में आ जाए, कि दो ऐसी रैशनल या तो रैशनल एंड इरेशनल हो जाए, या दोनों का इरेशनल हो बट कॉमेंसुरेट ना हो, मतलब वो इरेशनल नंबर्स कोइंसाइड ना करती हो, उनके मल्टीपल्स कोई कॉमन मल्टीपल ना हो उसमें। एक का पाई के फॉर्म में आ जाए, एक का ई के फॉर्म में आ जाए, कैसे बोलोगे आप? एक का पाई के फॉर्म में हो जाए, एक का √2 के फॉर्म में आ जाए, तो वो पीरियोडिक नहीं हो। आगे चलिए। सी 15 पाई। सही है। सी पार्ट में अगर आप देखेंगे तो पहले का पीरियड आएगा 2 पाई ओवर 2/3 और दूसरे का आएगा 2 पाई ओवर 4/5, और हमें इन दोनों का क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा? तो पाई तो कॉमन ही ले लिया करो, है ना? तो पाई कॉमन ले लिया, पाई टाइम्स एलसीएम ऑफ, एलसीएम का रूल, एक आएगा 3 और दूसरा क्या आ गया? दूसरा आ गया 5/2। अब एलसीएम का रूल क्या है भाई? एलसीएम ऑफ a/b कॉमा c/d क्या होता है? इट इज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर a and c डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर b and d। तो कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेना हो तो इस रूल को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा और इस रूल को यूज करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज पीरियोडिसिटी इज कंसर्न, है ना? तो a और c न्यूमर इसको 3/1 कर दो, मतलब पहले दोनों नंबर्स को p/q फॉर्म में ले जाओ, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। ये बहुत जरूरी है कि दोनों को रिड्यूस्ड फॉर्म में ले जाओ, लोवेस्ट फॉर्म में। तो पुट ऑल द पीरियड्स इन लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, देन LCM इज न्यूमरेटर, LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। सो 3 और 5 का LCM क्या हो गया? 15, और 1 और 2 को प्राइम्स है तो 1, तो 15/1, आंसर इज 15। 15 is the period. Is that clear? 15 नहीं, 15 pi is the period. Clear है सबको? Yes sir। What about D? 10. 20। इसका पीरियड क्या है? tan 3x 3π/5 पाई अपॉन 3π/5, और दूसरे का क्या है पीरियड? पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 7π/10, और हमें इन दोनों का एलसीएम चाहिए। क्या आया? तो दिस वन वाज बेसिकली 5/3 एंड दैट वन वाज बेसिकली 20/7, and therefore the period is 20। right जी। 5 and 20 का एलसीएम 20, और ये दोनों तो को प्राइम है तो 20 इज द पीरियड। सो 20 इंटरवल के बाद ये कर्व, ये ग्राफ रिपीट करेगा अपनी वैल्यूज को। अच्छी बात है। अब मतलब ये बेसिक केसेस तो आप हैंडल कर लेंगे, कितना भी मैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करूं, यू कैन मैनेज इट। Find the period of the following function if they are periodic. Cos of sin x I pi, sin of cos x तो जो इनर कंपोनेंट है उसका पीरियड पहले देखो। तो साइन कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स का पीरियड क्या होगा? तो कॉस का पीरियड क्या है? 2 पाई, तो 2 पाई पीरियड तो है ही। अब 2 पाई का सब मल्टीपल पे जाओ, पाई पाई प्लस एक्स करने पर क्या होगा? तो साइन ऑफ कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स बिकम साइन ऑफ माइनस कॉस एक्स, दैट इज माइनस ऑफ साइन कॉस एक्स, दैट इज माइनस एफ एक्स।
f of x plus pi minus fx means 2 pi is the period. So ultimately 2 pi remains the period. In first the period is pi and second period is 2 pi. Are you getting my point or not? Yes, sir. बेसिक कंपोजिशन का रूल क्या बोलता है कि दोनों का पीरियड 2 पाई होना चाहिए कंपोजिट प्रॉपर्टी से. यहां तक तो समझ में आ रहा है. बट कंपोजिट प्रॉपर्टी ये भी बोलती है कि फंडामेंटल पीरियड उससे छोटा भी हो सकता है. तो मैंने 2 पाई का सब मल्टीपल टेस्ट किया. यहां पर f ऑफ x प्लस पाई टेस्ट किया. क्या आया? कोसाइन ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस एक्स आया. अब साइन पाई प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो आ गया कोसाइन ऑफ नेगेटिव साइन एक्स दैट इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ साइन एक्स दैट इज इक्वल टू एफ एक्स. तो हमने बोला कि पाई पीरियड है, तो ये डिनाई हो गया और पाई पीरियड हो गया, ये सर्टिफाई हो गया. वेर एज जब दूसरे में वही काम किया एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, तो आ गया साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई. कॉस एक्स प्लस पाई माइनस कॉस एक्स होता है, बट साइन ऑड फंक्शन है तो माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स. अब देखो ये सारी बातें फंक्शन की यूज हो रही, कभी ऑड इवन पीरियोडिसिटी बेसिक प्रॉपर्टीज बेसिक आइडेंटिटी सब कुछ यूज होने लगेगी. तो ये माइनस एफ एक्स आ गया ना, तब वो थ्योरम की बात आ गई कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई एफ एक्स तो नहीं आया बट माइनस एफ एक्स आ गया. तो यहां से क्या कंक्लूड करेंगे आप कि 2 पाई इज पीरियड. वापस मतलब पीरियोडिक 2 पाई इस पीरियड का मतलब है कि एलसीएम रूल से जो आया वही आंसर. तो किसी केस में आंसर मॉडिफाई होगा एलसीएम रूल से जो आएगा, किसी केस में नहीं होगा, बट पीरियड तो 2 पाई है, दोनों केस में बोल सकते हैं. फंडामेंटल पीरियड का थोड़ा सा फर्क आ सकता है. हाँ जी जल्दी आंसर करेंगे क्विक. 3 पार्ट है, 2 मिनट टाइम है, 30 सेकेंड ईच. बी का तो 1 हो गया. बी का 1 आ गया. चलो इट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ओनली, जिसका पीरियड तो बाय डिफॉल्ट 1 है, पता ही है आपको. व्हाट अबाउट ए? सी का भी 1 आ जाएगा. सी का भी 1 आ गया, दैट्स ग्रेट. सी में क्या किया? प्लस पाई माइनस पाई. x प्लस पाई माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस पाई एंड माइनस पाई. पाई ऐड किया, पाई सेपरेट किया, तो ये वाला जो है ये तो हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस पाई और माइनस पाई. अब आपको पता है कि बेसिक रूल बोलता है कि ये पाई को हटा दो तो भी पीरियड नहीं चेंज होगा, और ये वाले पाई को हटा दो तो भी पीरियड नहीं चेंज होगा. कांस्टेंट ऐड करने से इनपुट में पीरियड नहीं चेंज होता, तो पीरियड इज 1. तो यहाँ भी पीरियड 1 आ गया जी. ये लो सही बात है, तो दूसरा वाला केस भी रिजॉल्व हो गया. अब फर्स्ट पार्ट पे जाओ. पाई बाई 2. पाई बाय 2. फर्स्ट पार्ट का पीरियड आपने निकाल दिया, कितना आया? पाई पाई बाय 2. बाय 2 इज द पीरियड. चलो अच्छी बात है. कैसे निकाला? तो वही केस हो गया ना जो पहले किया था, मोड साइन एक्स प्लस मोड 4. एलसीएम रूल से आया. एलसीएम ऑफ साइन 4x का पीरियड पाई है और कॉस 4x का पीरियड भी पाई है, तो पाई एंड पाई का एलसीएम पाई होता है. पाई बाय 2 पर चेक किया, चेक फॉर सब मल्टीपल, चेक फॉर पाई बाय 2, एंड जैसे पाई बाय 2 पर चेक किया तो आपको पाई बाय 2 पीरियड मिल गया, तो पाई बाय 2 इज पीरियड. उसके बाद आप पाई बाय 4 पर चेक करने की कोशिश कर सकते हैं, बट उससे आपको क्लियर दिख जाएगा कि फंक्शन चेंज हो रहा है पाई बाय 4 पर, तो इसलिए पाई बाय 4 इज नॉट द पीरियड, पाई बाय 2 इज द असाइंड पीरियड. दूसरा तरीका होता है कि इस फंक्शन को थोड़ा अरेंज करो, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/2 टाइम्स साइन कितना था 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 2x. एग्रीड और नॉट? बोलो, अरे बता दो. 1 माइनस 1/2 टाइम्स Yes, sir. 1/4 times 2 sin square is 1 minus cos 4x. So finally it is 1 minus 1/4 is 3/4
plus 1 by 4 times cosine of 4x. And now what is the period? तो ये 3/4 हटा दो, ये 1/4 भी हटा देना, तो इसका पीरियड इज इक्वल टू कोसाइन 4x का पीरियड। और कोसाइन 4x का पीरियड क्या है? तो 2π/4 that is equal to π/2. So as and when possible, you can just go by further reduction, especially in trigonometric functions. You can apply trigonometric identities and you can reduce the function into different form. After transformation to the standard case, you can compare and get the period. But for other cases, definitely you have to use these laws, जो rules आपको बताया जा रहा है वो। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है। That's it. आगे चलते जी। आप ग्रेजुअली यू आर पिकिंग अप द फॉर्म। यस, आई एक्सपेक्ट द आंसर फॉर बोथ द केसेस फ्रॉम यू। बोल रहे हैं कि fx एक पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं ये बताना है, या पीरियड उसका क्या है बताना है। fx अगर a+3 टाइम्स x + 5 है -3, तो एक बात तो क्लियर है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा मोनोटोनिक होता है और पीरियोडिक फंक्शन मोनोटोनिक नहीं होता है। तो योर आर्गुमेंट विल गो लाइक दिस: लीनियर पॉलिनोमियल fx is equal to ax plus b या a0 x plus a1 is monotonic for all a0 belongs to real number except 0, and so not periodic unless a0 is 0. तो विद दैट लॉजिक ये वाला पीरियोडिक होगा जब पीरियड क्या, जब a की वैल्यू क्या होगी, जब a+3 0 हो जाए या a की वैल्यू -3 हो जाए। जब a -3 होगा तो हमारा फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा -15। और कांस्टेंट फंक्शन के बारे में क्या ख्याल है? इट इज पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड। दिस इज वन आर्गुमेंट। दूसरा तरीका कि आप f(x + t) को fx मान लो और बोलो कि हर x के लिए ट्रू है, और फिर इक्वेशन को आइडेंटिटी ट्रीट करो, वहां से भी निकाल लो, वहां से भी आ जाएगा आंसर। तो ये a पार्ट हो गया, b पार्ट। इरेशनल होएगा तो फिर वो एलसीएम वाली से आते हैं। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आप सीधे बोलोगे कि इट इज पीरियोडिक इफ, क्या किया आपने, कैसे प्रूफ किया? एलसीएम एग्जिस्ट करना चाहिए पहले वाले का, तो पीरियड हमें पता है कि भाई पीरियड ऑफ साइन x क्या है? 2π। और पीरियड ऑफ कॉस ax क्या होगा? 2π/mod a। 2π/a मान लो, है ना। and I'm assuming a to be positive, and then period of fx क्या होगा? तो वो होगा suppose t, let period of fx is t, तो obviously t is equal to n times 2π, also equal to m times 2π/a, where m और n क्या है? m और n नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहां से मेरे को मिलेगा, दिस implies if you take the ratio from this equality, so you'll say t 2π gets cancelled and you'll get m/n, या a is equal to m/n. m is natural number, n is natural number, so this is a rational number. A must be rational. Rather, you are basically asserting that that sin x plus
cos root x टाइप ऑफ केस, ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा, नॉन पीरियोडिक। या ऐसे बोल सकते हो कि जैसे मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है, जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है, एफ एक्स इज कोसाइन ऑफ एक्स प्लस कोसाइन ऑफ रूट 2x, okay, and then find the number of solution of fx is equal to 1, fx equal to 2. जल्दी बोलो, fx equal to 2 के कितने सोल्यूशन होंगे? समझ में आ रही बात कि नहीं? कोसाइन ऑफ x प्लस कोसाइन ऑफ रूट 2x इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे? नंबर ऑफ रियल रूट्स। कितने रूट्स होंगे इसके जानना चाहिए। हाँ, 1 कौन सा? 0 तो x equal to 0 is clear solution, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इनफैक्ट ये दोनों फंक्शन लेस देन इक्वल टू 1 वैल्यू टेकअप करेंगे, तो इक्वालिटी तभी होगी जब दोनों 1 हो जाए, मतलब cos x भी 1 हो जाए एंड cos x रूट 2 भी 1 हो जाए। और ये कब 1 होगा? जब x की वैल्यू 2n पाई हो जाए। और ये कब 1 होगा? जब रूट 2x की वैल्यू क्या हो जाए? 2m पाई हो जाए। यहां से क्लियर कट आ जाएगा क्या कि 2n पाई अपॉन 2m पाई is equal to 1 by root 2, and which is a contradiction, m upon n is equal to root 2, contradiction आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या बोला? मतलब ये बोला कि एक ही केस में ये दोनों वैल्यू इक्वल हो सकती है जब m और n दोनों क्या हो जाए? 0। m और n दोनों 0 हो जाए तो x की वैल्यू यहां से भी 0 आएगी, यहां से भी 0 आएगी, उसके अलावा किसी भी वैल्यू के लिए इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। अगर m और n नॉन जीरो नेचुरल नंबर्स में तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। दिस यू प्रूव। सो इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरा तरीका ये बोलो कि 0 पर वैल्यू आ गई, अब वैल्यू दोबारा रिपीट होने का मतलब क्या है? कि पीरियोडिसिटी हो। अगर इसका कोई पीरियड होगा तो उस पीरियड के से वैल्यू रिपीट होती जाएगी, बट इसका कोई पीरियड नहीं, इट इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन, इट विल नॉट रिपीट इट्स वैल्यू, तो इसकी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। पीरियोडिकली कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, मतलब वैल्यूज रिपीट होंगी, ऐसी बात नहीं है। सर ये दूसरे वाले में तो फ्लो नहीं है, आप मतलब ये थोड़ी कह सकते हो कि वो वापस से सेम शेप ही गेन करे। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला कि वैल्यू पीरियोडिसिटी से आर्गुमेंट इसका करेक्ट नहीं होगा। ऑल्दो ये बात तो हो सकती है कि चूंकि मैक्स वैल्यू है ना, तो मैक्स वैल्यू एक बार अकर कर रही है तो मैक्स वैल्यू दोबारा अकर नहीं करेगी। पीरियोडिसिटी से आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि वो मैक्स वैल्यू एक कांस्टेंट इंटरवल पे अकर नहीं करेगी, उससे आप पूरा उसको एज एन आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकते उस केस में। ये आर्ग्यूमेंट करते समय आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा एग्जैक्टली जो ये वाला पहल जो आर्गुमेंट यहाँ पर शो किया गया, दिस इज द आर्गुमेंट, नॉट द पीरियोडिक फंक्शंस आर्गुमेंट। हाँ जी, जल्दी आंसर करो।
आर्ग्यूमेंट क्या है? सर न्यूमरेटर का 2 पाई अपॉन मॉड n होगा और डिनोमिनेटर का 2n पाई। अब इनका एलसीएम 4 पाई होना चाहिए, तो सर वो तभी होगा जब मॉड n 2 होगा, तो n प्लस साइन एन एक्स के लिए आपने बोला 2 पाई अपॉन n हो गया, और हम n को नेचुरल नंबर ही लेके चल रहे हैं। साइन ऑफ x बाई n अगर है, हाँ आप मॉड n भी ले सकते हो, बिल्कुल सही बात है, मॉड n ही रखो क्योंकि इंटीजर की बात कर रहे हैं। और साइन x बाई n का पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 1 बाई n, तो 2n पाई हो जाएगा। तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि एलसीएम ऑफ 2 पाई ओवर मॉड n and 2 mod n times pi exist, it is equal to given as 4 pi. So what do you get actually? यहां से क्या आएगा? 2 पाई तो हटा ही दो, बाहर ले लो, 2 पाई टाइम्स एलसीएम ऑफ 1 अपॉन मॉड n and mod n is equal to 4 pi. So LCM of 1 by mod n and mod n by 1 क्या होगा? तो LCM ऑफ न्यूमरेटर बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर, तो mod n ही आएगा। mod n is equal to 2, तो n is equal to plus minus 2। दूसरा है कि f of x plus 4 pi is equal to fx डाल दो और वहां से सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन को फिगर आउट करो। तो दैट विल टेक लिटिल टाइम, बट यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर आल्सो। गो टू सिक्स्थ वन, आंसर डायरेक्टली। यस सर, हो गया। क्या हुआ? सर x sin x में तो फिर x तो नॉन पीरियोडिक है। हाँ, x जो है मोनोटोनिक फंक्शन है, और मोनोटोनिक पे साइन मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जाएगी। अनबाउंडेड फंक्शन है ना, अनबाउंडेड फंक्शन है, और इसका ग्राफ जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। एक्चुअली आप ऐसे सीधे स्ट्रेट अवे नहीं बोलना, आप स्ट्रेट अवे इसको ऐसे दिखाना कि x साइन x या x प्लस साइन x या x माइनस साइन x जो है वो फंक्शन एक एम्प्लीफाइड फंक्शन हो जाएगा और वो पीरियोडिक नहीं होगा। जैसे कि x साइन x का ग्राफ कैसा होगा? तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा। क्योंकि जब जब साइन x की वैल्यू -1 होगी तो ये x माइनस एक्स को टच करेगा, जब +1 होगी तो ये प्लस एक्स पे चला जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ होगा, और ये ऑड इवन फंक्शन है तो ऐसा ऐसा यही रिपीट होगा, ऐसा ऐसा। तो दिस इज नॉट अ पीरियोडिक, इट इज अ ऑसिलेटरी फंक्शन बट इट इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। जहां तक दूसरे वाले की बात है, तो दूसरे वाले में तो ठीक है, इसका साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, इसका पीरियड 1 है, तो एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 1 डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी पीरियोडिक नहीं हुआ, तो ये दोनों नॉन पीरियोडिक हैं। यू हैव पुट फॉर द आर्ग्यूमेंट हाउ इट इज डन। नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू 2 क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू डू इट एज अ होमवर्क। एक तो ये नोट कर लो, वैसे आपके हो सकता है कि आपका गेम में भी होना चाहिए क्वेश्चन, पीरियोडिसिटी वाला गेम में। Let f be a real valued function defined for real x such that for some positive constant a, the equation f of x plus a is equal to half plus root of fx minus f square x holds for all x. Prove that f is periodic function. This is one question. Since it is there in game, so you will refer from there and do this question. Tomorrow evening we'll discuss if you are not able to get it. And other one is, if f of x plus lambda is g of fx such that g of gx means composed n times is equal to x, then prove that fx is periodic with period l lambda where lambda is a fixed positive real constant. तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है आपके लिए एक तरह से एक होमवर्क हो गया, इसको करके और रखेंगे। और कुछ क्वेश्चन और भी पीरियोडिसिटी में होंगे आपकी गेम में, उसको कर लेना। दो क्वेश्चन और भी हैं, दो तीन
क्वेश्चन और भी होंगे अच्छे, तो उनको भी कर लेना। सो दिस इज व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, even, odd, periodicity and other things, monotonicity, composition, inverse, invertibility. Now I have to take up the graph sketching of curve. So tomorrow we'll get just dedicate some time on sketching of curve. Max min function हम discuss कर चुके थे ना? How to draw the graph of max of two function, max fx comma gx, min fx comma gx, isn't it? हाँ या ना, फटाफट बताओ। फिर किसी डाउट क्लास में बताया था आपने वो स्टार्टिंग में। डाउट क्लास में? यस सर, एक क्वेश्चन भी यूज आया। तो क्वेश्चन में यूज आया था तो उसको इलेबोरेट करके ही बताया होगा कि बस केवल थोड़ा सा ही Yes. बताया? चलो नहीं ठीक है, सर करा। ठीक है। तो एनीवे अगर नहीं होगा तो कल रिवाइज भी कर लेंगे। और कल हम लोग कर्व स्केचिंग करेंगे कि किसी भी फंक्शन का, किसी भी अननोन फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, पूरी प्रोसेस करेंगे। फिर कुछ कर्व्स को स्केच करेंगे। जब कर्व स्केचिंग कर लेंगे फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कि ग्राफिकली ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं किसी फंक्शन को। मीन्स जितने तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, सो दैट ग्राफिंग तुम्हारी जो है बिल्कुल मेच्योर हो जाए। और फिर तब हम लोग ITF करेंगे। ठीक है, तो एक दिन लगेगा तुम्हारा कर्व स्केचिंग पे, कल का दिन लगेगा। ठीक है, और उसका नेक्स्ट डे परसों वाली क्लास नहीं, वेंसडे वाली क्लास में हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और साथ के साथ कर्व स्केचिंग की कुछ सवाल करते रहेंगे। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन may take 2 days and then we will start the ITF. ITF will take around 3 days. So in the coming week we will finish functions in detail and then we'll move to continuity just by having a रिवीजन ऑफ लिमिट्स। तो एक शीट आपको दे करके उसके सम्स पहले क्लास में हम लोग कुछ करेंगे ताकि लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है पूरा रिकॉल हो जाए, और उसके बाद फिर सीधे कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करेंगे हम लोग। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो गई तो डिफरेंशिएशन आप कर चुके हैं, तो डिफरेंशिएशन जैसे लिमिट पर एक रिकैप लेंगे, ऐसे ही डिफरेंशिएशन पर एक रिकैप लेंगे प्रॉब्लम्स के थ्रू। प्रॉब्लम शीट होगी मिक्स्ड, उसको करेंगे और उसी में लास्ट में जाकर के जो ITF से रिलेटेड डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम है या इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम है, कंपोजिशन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम है, सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम्स है, वो जो एडवांस वाली जो डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम है वो करेंगे। और उसको करके फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्विच कर जाएंगे। कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्विच करने के लिए हमें बहुत ज्यादा लेक्चर्स अब नहीं चाहिए। मतलब कि दो लेक्चर्स जो है कुछ वो टॉपिक्स पर लेते हो, सिर्फ कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे विल स्पेंड टाइम बिकॉज इट इज द सोल ऑफ द इंटायर कैलकुलस, इंटायर डिफरेंशियल कैलकुलस एज वेल एज इंटीग्रल कैलकुलस। चलो, सो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे। हाँ, एक क्वेश्चन जो था, आई थिंक ग्रुप पे पूछा था, किसने पूछा, ध्रुव ने पूछा था या किसी ने पूछा था। वो क्वेश्चन ये था, मैंने सोल्यूशन भी शेयर किया था कि उसके लिए पहले एक फंक्शन है x की पावर x, और इस फंक्शन का आपको चाहिए कि ग्राफ कैसा होता है या इसका रेंज क्या होता है। इसको थोड़ा समझ लो। ये x की पावर x फंक्शन जो है ना, बेसिकली एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन है क्योंकि बेस भी वेरिएबल है। और इस फंक्शन के बारे में इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पर आती है 1। कैसे आती है? मान लो ये लिमिट L है तो log L ले लो, क्या आ जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x log x हो जाएगा। बेटा log के अंदर लिमिट ले जा सकते हैं, आपको याद ही होगा। फिर इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log x अपॉन 1/x। अब ये हो जाएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। LH रूल लगा देंगे, एल ऑपिटल रूल याद है आपको? एल ऑपिटल रूल लगाएंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होता है? न्यूमरेटर का 1/x और डिनोमिनेटर का -1/x²। तो ये लिमिट आ जाएगी 0। समझ में आ रही बात कि नहीं? x²/x करके 0 आ जाएगी। log L 0 आ गया, log L 0 आ गया तो L की वैल्यू आ जाएगी e की पावर 0 दैट इज 1। तो पहली बात ये समझ में आनी चाहिए कि ये फंक्शन
0 पर 1 से स्टार्ट लेगा। 1 से स्टार्ट लेने का 0,1 से स्टार्ट लेने का मतलब 0 पर वैल्यू 1 तो नहीं आएगी, लेकिन टेंडेंसी उसकी 1 है, तो 1 से ओरिजिनेट 0,1 से ओरिजिनेट करेगा। पहली बात, आप अगर कैलकुलेटर लेकर के इसकी जीरो की मतलब 0.1 की पावर 0.1 पॉइंट साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर इसका टेंडेंसी डाउनवर्ड है, इट इज डिक्रीजिंग। हाउ डू आई गेट इट? बाय कैलकुलस। By calculus, what we do, take log and we'll get log y is equal to x log x. Then differentiate. If you differentiate, you will get y prime upon y. 1 upon y into y prime is equal to first into derivative of second is 1 plus second into derivative of first is log x. तो यहाँ से बेटा y prime की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? I'm not going to write over here. So y prime is equal to आ गया क्या बोलो, dy by dx, y prime upon y था ना, तो y prime आ गया y मतलब x की पावर x टाइम्स 1 प्लस log x। हेलो, बात समझ में आ रही कि नहीं? अब y प्राइम को 0 करो, ये वाला तो 0 होगा नहीं क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये वाला 0 करो तो log x की वैल्यू 1/e आएगी। क्या आएगी? -1 आएगी। तो वहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 1/e आएगी। तो 1/e इज अ सिंगल क्रिटिकल पॉइंट। 1/e के राइट में डेरिवेटिव क्या आएगा? तो अगर x की वैल्यू 1/e से बड़ी है तो x ग्रेटर देन 1/e पर देखोगे log x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, तो 1 प्लस log x पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पूरा डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इधर में डेरिवेटिव पॉजिटिव है और इधर में डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली समझ गया ना कि यहाँ से डिक्रीज करता हुआ फंक्शन आएगा, 1/e पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी और इसके बाद ये इंक्रीज करने लगेगा। और आपको पता है कि 1 पर वैल्यू 1 आ रही है, तो 0 पर लिमिट तो 1 नहीं है, लेकिन 1 पर वैल्यू तो क्लियरली 1 है, 1,1। इसके बाद ये ग्राफ ऐसे इंक्रीज करते हुए ऊपर आगे निकल जाएगा। तो दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ ग्राफ। बिकॉज अगर मैं 0 से 1 की बात करूं तो इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो x की पावर x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही बताओ? x की पावर x की मिनिमम वैल्यू आ रही है e रेज टू द पावर -1/e, e रेज टू द पावर -1/e, क्योंकि 1/e की पावर 1/e, e की पावर -1/e, तो मिनिमम और मैक्स वैल्यू 1 है। तो ये दिस बिलोंग्स टू e टू द पावर 1/e नेगेटिव 2 1, 1 इज क्लोज्ड एंड दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड। कब? अगर 1 पर क्लोज है, तो अगर 1 ओपन है तो दोनों साइड में से एक साइड ओपन हो जाएगा। कौन सा? ये वाला ओपन हो जाएगा और ये वाला क्लोज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे समझ में आ जाएगा ना? आगे उस अब यहां से कोई आ जाएगा, log ऑफ x की पावर x प्लस 1 का रेंज क्या आएगा? तो भाई इसी में 1 ऐड कर दो, तो x की पावर x प्लस 1 की रेंज आ जाएगी 1 प्लस e की पावर -1/e से लेके 2 तक। फिर log ले लो, log तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसकी रेंज आ जाएगी log ऑफ 1 प्लस e की पावर -1/e से लेके log 2 तक। अब उसमें फंक्शन में एक थोड़ा सा टर्न था, ये कि फंक्शन ऐसे नहीं दिया था, उन्होंने दिया था log ऑफ sin x की पावर sin x प्लस 1। तो क्या फर्क पड़ता है, x के बारे में दिया था 0 से π/2, तो बात तो वही आ गई। sin x को t मान लो, x अगर 0 से π/2 है तो sin x की वैल्यू 0 से 1 होती है, तो यही वाला केस तो बन गया, यही वाला केस t के log ऑफ t की पावर t प्लस 1 where t varies 0 to 1, तो सेम केस है, सेम रेंज आएगी एग्जैक्टली। तो बट ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में पूरा मैक्सिमा मिनिमा यूज होता है, तो इस तरह के जो रेंज की प्रॉब्लम है उसको अच्छे से आप कर पाएंगे जब आप पूरा कैलकुलस खत्म कर देंगे, डिफरेंशियल वाला पार्ट। तो आई वुड से दैट बाय द एंड ऑफ जुलाई you will be able to handle this kind of problems well. So till July you have to just you may have to struggle in some of the cases of range of this sort, but by the end of July you'll be able to do it for sure. So let's close the call for today. See you tomorrow evening. वो जो मैंने क्वेश्चन भेजा था ना, हम्म उसके अंदर एक्चुअली क्या था, वो जो कर्ली ब्रैकेट थे मैंने उनको फ्रैक्शनल पार्ट समझ लिया था।
हाँ 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 तो उससे ना एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है कि अगर हम मतलब n को मतलब n कोई एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए हमारा जो फंक्शन आएगा वो 1 आ जाएगा। अच्छा और उसके बाद फिर वो 1 पे ही अटक जाता है। ओके। तो क्या इशू क्या था? कर्ली ब्रैकेट को तुमने फ्रैक्शनल पार्ट मान लिया? ये सर पहले मेरे को याद नहीं रहा एक्चुअली कि जब तक वो मेंशन नहीं करते तब तक नहीं मानना होता। अच्छा, तुमने वो एज्यूम करके सोचना शुरू कर दिया। यस सर। फिर उससे मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग एक तो इनइक्वालिटी भी प्रूव हो गई थी मेरे से। फिर जरा अपना वर्क दिखाना, तो शेयर करना मुझको। ये सर मतलब पूरा नहीं हुआ अभी, लेकिन ना उससे मतलब थोड़ा शुरू तो हो मिल गया मेरे को कि कहाँ से होएगा। फिर मैं वो भेज देता हूँ आपको। ठीक है, भेजो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी क्वेश्चन को मतलब वर्कआउट करते करते आप कुछ अलग स्केल पर आ जाता है। जैसे अभी मैं कुछ मैट्रिसेस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी बहुत सारी चीज लर्निंग में आई, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय। सो सम गुड प्रॉब्लम्स आर देयर। आई मैं भी टोल्ड भेज दैट। दूँ सर। हाँ, मैं भेजता हूँ उसको, आप लोगों को भेजता हूँ। चलो ठीक है, सो सी यू टुमारो।